As India works towards its Viksit Bharat goals, where Make in India is the buzzword, I'm here to talk about Make by Yuva. How do we bridge the gap and get more youth interested in entrepreneurship? Well, to answer those questions, joining me today is Jimmy Tyagi, CEO, Gold Plus Group, and Ajay Singh, the founder and director, High Glance. Welcome to both of you, sir. So good to have you. So good to have you. Please take a seat. Well, starting with you, Gold Plus, your company, it has carved a niche in the glass manufacturing industry. What exactly inspired you to enter this space, and what challenges did you face as a young entrepreneur in a capital-intensive sector? Thank you. See, Gold Plus is the only Indian company manufacturing glass in India. The inspiration was very simple. Glass is everywhere, from infrastructure to automobile to solar industry. And there was a big gap in the demand for high quality product and the supply in Indian market. So that was the inspiration to set up this industry. And we have been in the glass industry for 40 years. My father set it up 40 years back as a trading company. We grew to be a processor. So it was a natural progress to be in the manufacturing segment as well. So inspiration came naturally with the scenario in India. The challenges, being a newcomer and pitched against the best in the world, the pressure and the willingness to be accepted in the market, that was the challenge. And to achieve that, we need to invest heavily in technology, to be able to produce the best product which can stand tall against any competitor, any international competitor. So that was how we overcame that challenge, and we strengthened our company to be competing against the best in the world. Ajay ji, the pharmaceutical sector, it is one of the most challenging sectors to be a part of. Would you agree with that? Yeah, I'm agree with you. I also want to understand, because this is such a highly regulated sector, it is also very research intensive. What exactly motivated you to start High Glance? First of all, I would say thank you to NDTV. Initially, जब हमने स्टार्ट किया इंडस्ट्री को, तो उस समय इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी. ये मालूम था कि यह फार्मास्यूटिकल में हमें एंटर करना है, कि इट्स वेरी ग्रोइंग फेज. शुरू में कोई आपको सीरियस नहीं लेता है क्योंकि आपके पास कोई कंपनी नहीं होती है. तो आप कहीं भी जाओगे तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा ना, वी आर गोइंग टू बी सेट अप द प्लांट इंडस्ट्री. तो हमने इंडस्ट्री डालने के लिए डिसीजन हम लोग मैनेजमेंट ने लिया, तो सब लोग ये सोचते थे कि नहीं, पैसे इसमें वेस्ट हो सकते हैं, आपके पैसे स्टक हो सकते हैं. बट एक था कि विज़न था कि नहीं, हम लोग कर सकते हैं, वी कैन डू. शुरू में हमने इंडस्ट्री डाली, तो उसके बाद चैलेंज आया कि कोई भी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट को डेवलप करना होता है, क्योंकि मार्केट में आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना. फार्मास्यूटिकल एक ऐसा फील्ड है जो लाइफ सेविंग ड्रग हम लोग बनाते हैं. इसमें कोई सेकंड चांस नहीं होता है. मूवी ऐसे बनाया आपने, चली नहीं चली, सेकंड मूवी बना लिया. मेडिसिन में कोई सेकंड चांस नहीं होता है. आपके बैच मार्केट में आ गए तो ये नहीं बोल सकता कि नहीं, बैच आपके स्टैंडर्ड बैच नहीं है. तो प्रोडक्ट डेवलप करने में 2 to 3 years हमें लग गए. प्रोडक्ट डेवलप करना है, फिर ह्यूमन ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल्स, बहुत टाइम लगते हैं. प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के बाद जब हम इस प्रोडक्ट को मार्केट में लाते हैं, फिर ये प्रूफ करना होता है कि माई प्रोडक्ट इज़ बेस्ट इन द फार्मास्यूटिकल मार्केट. तो ये जो 3-4 years होते हैं, बहुत ही चैलेंजिंग होती हैं किसी भी कंपनी के लिए. फार्मास्यूटिकल जब आपके प्रोडक्ट डेवलप हो जाते हैं, फिर आप इंटरनेशनल मार्केट में आपको प्रोडक्ट को उतारने हैं, ग्लोबल मार्केट में. उसके लिए आपके जो फैसिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, वो प्लांट भी हेल्थ मिनिस्ट्री से अप्रूव होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं. जब आपके प्लांट अप्रूव हो गए, तो किसी भी कंट्री में आप मार्केट में प्रोडक्ट को उतारोगे, तो वहाँ पे प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करने में इट विल टेक 2 to 3 years. तो ये 5-6 years का काफ़ी लंबा गैप होता है, जो कि फाइनेंस को मैनेज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क. एक बार आपकी साइकिल घूम जाती है, देन यू कैन ऐड मैनी प्रोडक्ट्स, मैनी इंडस्ट्रीज, मैनी लाइन्स. तो शुरू के 5-6 years इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर एनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज. आपकी जो इंडस्ट्री है वो इसलिए भी मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि हमने देखा है, कोविड का टाइम भी देखा है,
और कोविड में एक फार्मा कंपनी का कितना बड़ा जो है उससे बाहर आने में कितना बड़ा रोल था, उसके बारे में थोड़ा सा ये मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो कोविड पीरियड था 21 डेज़ का लॉकडाउन ऑल ओवर इंडिया लगा हुआ था, उसमें भी हमारी इंडस्ट्री ने 21 डे वर्क किया था और ये गवर्नमेंट का हमें परमिशन था और गवर्नमेंट को हमें रोज़ रिपोर्ट भेजनी पड़ती थी कि नहीं आपको फार्मास्यूटिकल एज ए आपके ये जो मेडिसिन है स्कैरसिटी नहीं होनी चाहिए मार्केट में, तो आप प्लांट को बंद नहीं कर सकते हो। हमने 50% अपनी जो कैपेसिटी थी उस पर प्लांट को चलाया फॉर 21 डेज़ और जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल्स थे, पैकिंग मटेरियल्स थे, वो हमने जितने भी थे उसको स्टॉक को हमने यूज़ किया और कोविड टाइम में हमने जितना भी हेल्प हो सकता था गवर्नमेंट को हमने किया और सप्लाई भी की। इवन कुछ मेडिसिन थे जो कोविड के ट्रीटमेंट में जाते थे, जैसे एजिथ्रोमाइसिन थे, हमने सप्लाई की थी। Jimmy, we have been talking about the idea of self-reliance in manufacturing, and this is important. How do you see the role of young entrepreneurs? A lot of young people who want to get into this industry, who want to make something of their own. How do you see the role of young entrepreneurs in driving the Make in India campaign forward here? See, the role of entrepreneurs in India, especially the young entrepreneurs, is extremely important. India is in a place where we are looking our economy to grow at a faster pace than any other country in the world. And this is a great opportunity for anyone. If you invest in the right field, if you're convinced about it, putting it hard effort to make sure that you succeed in that industry, it is bound to grow. So I think the young entrepreneurs, if given the right ecosystem, the right funding, they are bound to make India a hub of manufacturing. So they are actually at the right place. They are more tech savvy. They can adopt to new technologies faster. They come with new ideas, new energy, a very high energy level. All those is, perfect ingredients to for an economy like India, for it to grow. Having said that, what is that one piece of advice that you would want to give these young entrepreneurs in order to excel? See, when you're convinced with an idea, you need to put in effort. You make sure that you don't stop until you achieve that goal. Of course, the support from the government is important. The right ecosystem is important, which I think is being given in today's time. So it is the perfect time. Don't give up. Make sure you work hard for the goals that you've set for yourself. You'll achieve it. Take that advice, everyone. Take that advice. Ajay, innovation जो है वो एक बहुत ही बड़ा की फैक्टर है, स्पेशली आपके सेक्टर में. कुछ ऐसे ब्रेक थ्रू आइडियाज़ जो हैं, जो हाई ग्लांस अप्रोच कर रहा है या इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से अगर बताना चाहें तो. जो ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट है वो इट डोमिनेटेड बाय द इनोवेटर्स. हमने जब इंडस्ट्री लगाई तो हमने अपना रिसर्च पे काफ़ी इन्वेस्ट किया, पैसे टाइम भी हमने इन्वेस्ट किया और हमने बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स तो डेवलप नहीं किया, बट हमने ड्रग डिलीवरी सिस्टम पे बहुत सारे काम किए और हमने बेटर देन इनोवेटर उससे भी हमने अच्छे मेडिसिन बनाए जो हमने प्रूफ किया क्लिनिकली, उसके बायोएक्विवेलेंस किया, जो ह्यूमन ट्रायल किया. ऐसे बहुत सारे, जैसे आपने टैबलेट के साइज़ छोटे कर दिए, वॉल्यूम्स उसके शेप एंड साइज से कम हो गए, आपका प्लाज्मा लेवल जो होता है ब्लड में, जो स्ट्रीम में ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी होती है उसको बढ़ा दिया. तो ऐसे बहुत सारे हमने रिसर्च किए, कुछ ऐसे फॉर्मेशन डेवलप किया जो बेटर देन इनोवेटर्स थे एज ए ह्यूमन ट्रायल. तो इसलिए हमारा जो भी मार्केट रिपोर्ट है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इनोवेटर्स. डॉक्टर्स को हमें ईजी होता है प्रमोट करने में, डॉक्टर्स क्योंकि सारे मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो डॉक्टर को हम बता सकते हैं कि दिस इज़ पेशेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट इज़ बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट्स. तो हमने रिसर्च पे काफ़ी काम किया है, बहुत सारे हमारे ऐसे मॉलिक्यूल्स पे हम काम करें जो पाइपलाइन में हैं, आने वाले 3-4 years में बहुत सारे मॉलिक्यूल आएंगे. All right, gentlemen, thank you very much for your insightful ideas, your views, and thank you for sharing it with all the young people here. I'm pretty sure everyone sitting here has taken something from what you have said, and they're going to implement it in going forward in their own lives. Thank you very much. Thank you so much. Thank you.